আবার একটা নতুন ব্লগে আপনাদের স্বাগত। কাটলারিগুলো কিন্তু সব কাগজে। लाहौरी गेट क्यों बोलते हैं? उस गेट का मुंह लाहौर की तरह। इसको शाहजहां ने बनाया। शाहजहां कौन? जिसने ताजमहल बनाया। ये दीवाने खास है। यहीं पर शाहजहां बैठते थे मयूर सिंहासन पे, जिसको तख्ते ताउस भी बोलते हैं। ये जो किला है, इस किले का एरिया है 256 एकड़। আবার একটা নতুন ব্লগে আপনাদের স্বাগত। আমি আজ একটা নিজস্ব পার্সোনাল কাজে দিল্লি যাচ্ছি। তো আমি দুদিন থাকবো দিল্লিতে, আর দিল্লিতে কাজ মিটিয়ে আরও দুদিনের জন্য আমি যাব জয়পুর। তো দুদিনের জয়পুর আর দুদিনের দিল্লি, সঙ্গে থাকুন। আমার ফ্লাইট এয়ার ইন্ডিয়া, যেটা দুপুর 3:55 কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে ছাড়বে। এই হলো এয়ার ইন্ডিয়ার বিভিন্ন কাউন্টার। তো এখন বোর্ডিং পাস নেব, হাতে বেশি সময় নেই। জাস্ট বোর্ডিং পাসটা নিয়ে চেষ্টা করবো লাউঞ্জ অ্যাক্সেস করার, কারণ খুব খিদেও পেয়েছে। এখন বাজছে প্রায় 2:20 হবে। এই নিচ দিয়ে যেখানে লেখা আছে ফুড টার্মিনাল, তার ঠিক পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে যাচ্ছে। উঠে গিয়ে জাস্ট সাইড দিয়ে ট্রাভেল প্লাজার লাউঞ্জ। তো এখন আমি লাউঞ্জের সামনে, খুব টাইম কম আছে, জাস্ট ঢুকবো, আপনাদের দেখাবো, অফিসে খেয়ে বেরিয়ে যাবো। এই হলো আজকের লাঞ্চ, ডোমেস্টিক এয়ারপোর্ট কলকাতা। এই দুটো নিয়ে এলাম, খুব তাড়া আছে, তাড়াতাড়ি করে খেয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। আর জায়গার খুব অভাব, এখানে রয়েছে। চারিদিকে প্রচণ্ড লোক, প্রচণ্ড আছে ট্রাফিক, মানে ভিড়ভাড়টা আছে। তার জন্য জাস্ট একটু দূরে এলাম, এখানে কোনো রাখার জায়গা নেই, একটু কষ্ট করেই খেতে হবে। এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট নাম্বার 2768। আশা করছি আর 10-15 মিনিটের মধ্যে গেট ওপেন হয়ে যাবে। জাস্ট এবার গেট ওপেন হলো। ফ্লাইট ফুলই আছে আমার যত আইডিয়া, আর লোকজন আছে। বোর্ডিং গেট দিয়ে ঢুকে এলাম, এবার ফ্লাইটে উঠবো। আজকে যেন সিকিউরিটি একটু বেশি। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, সবটাই আমাদের সিকিউরিটি কথা ভেবে নিয়ে এটা করা হয়। ফ্লাইটে কিন্তু এন্টারটেনমেন্টের কোনো ব্যবস্থা নেই, কোনো টিভি নেই, কিচ্ছু নেই, খালি একটা ইউএসবি কেবল দেওয়া আছে। এটা খাবারের জন্য ট্রে টেবিল, কিছু ম্যাগাজিন দেওয়া আছে। তার জন্য মোবাইলে একটা বাংলা মুভি ডাউনলোড করে নিলাম, যাতে 2 ঘন্টা পথটা যেন কাটে। সপ্তপদী ডাউনলোড করে নিলাম। আজকে এটা দেখতে দেখতে চলে যাবো, 2 ঘন্টা একটু বেশি সময় লাগবে। ভালো একটা জিনিস, মোবাইলটা রাখা খুব সমস্যা। এই মোবাইলে রাখা যেগুলো সিনেমা, একটা সিনেমা লোড করে নিয়ে এসেছি। জাস্ট এই খাবারটা দিয়ে গেল। তো বিকাল, তাই স্ন্যাক্স জাতীয় কিছু জিনিস। কাটলারিগুলো কিন্তু শক্ত কাগজের, খুব গরম আছে। সিঙ্গারা, আর এটা একটু খেয়ে দেখি। আচ্ছা, এটার নিচে কিন্তু একটু আইসক্রিম জাতীয় একটু দেওয়া আছে, ঠান্ডাও আছে। এটা কিন্তু খেতে ভালো, যথেষ্ট ভালো। খাওয়ার পর একটা কফি নিলাম, ভালো লাগছে।
এই জাস্ট ফ্লাইট থেকে নামলাম দিল্লি এয়ারপোর্ট। এখন আস্তে আস্তে বাইরের দিকে যাচ্ছি। জাস্ট এসে পৌঁছালাম দিল্লির এয়ারপোর্টে। কাল সকালে আপনাদের নিয়ে যাব দিল্লির কোনো ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানে। সঙ্গে থাকুন। The next day. আগের দিন রাতে দিল্লি এসে পৌঁছেছি। সকালে কিছু কাজ ছিল পার্সোনাল, সেটা মিটিয়ে নিয়ে দুপুরে চলে এলাম লাল কেল্লা দেখব বলে। তো লাল কেল্লার টিকিট কাটলাম। জনপ্রতি 35 টাকা টিকিটের মূল্য, আর ফরেন ন্যাশনালের জন্য 500 টাকা। আর যদি কেউ ফিল্মিং করতে চান অর্থাৎ ভিডিও ফটোগ্রাফি করতে চান তাহলে জনপ্রতি টিকিটের দাম হচ্ছে 25 টাকা, এটা অ্যাডিশনাল। তো এখন চলুন লাল কেল্লার ভেতরে আর জানার চেষ্টা করি লাল কেল্লার ইতিহাস। সঙ্গে থাকুন। এই হলো লাল কেল্লার প্রবেশ পথ। তো চলুন এখন লাল কেল্লার ভেতরে যাওয়া যাক আর এর ইতিহাস সম্বন্ধে একটু জানি। আর একটি কথা, এই ইতিহাস সম্বন্ধে জানার জন্য একটি গাইডের বিশেষ প্রয়োজন। তো লাল কেল্লার বাইরে এবং ভেতরে দু জায়গাতেই গাইড পাবেন। একটু দাম দর করে নিলে 300 থেকে 500 টাকার মধ্যে এই গাইড পেয়ে যাবেন। তো এখন চলুন লাল কেল্লার ভেতর থেকে একটি গাইড নিই এবং এর ইতিহাস সম্বন্ধে একটু জানি এবং আপনাদেরও জানাই। সঙ্গে থাকুন। आई प्लीज। जिस गेट से आप एंटर हुए, आपने दो कैनन्स देखी, उस गेट को बोलते हैं लाहौरी गेट। लाहौरी गेट क्यों बोलते हैं? उस गेट का मुंह लाहौर की तरफ। इसको शाहजहां ने बनाया। शाहजहां कौन? जिसने ताजमहल बनाया। शाहजहां लाहौर में पैदा हुआ 1592 5 जनवरी, और लाहौर में ही बड़ा हुआ, और जिसने उसको डिजाइन किया उसका नाम भी लाहौरी था, तभी इस गेट को नाम दे दिया लाहौरी गेट। फिर आप ये मार्केट से निकल के आ रहे हैं, ये मार्केट शाहजहां ने बनवाई अपनी रॉयल लेडीज के लिए। शाहजहां नहीं चाहते थे उनकी रॉयल लेडीज बाहर जाए शॉपिंग के लिए, उन्होंने अपनी लेडीज के लिए शॉपिंग सेंटर बनाया। आपने चीज नोटिस की, दैट मार्केट इज कवर्ड विद अ रूफ। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मार्केट इज कवर्ड विद अ रूफ। मार्केट जब भी बनती थी ओपन बनती थी, तो कवर्ड में उसका नाम पड़ गया छत्ता बाजार। छत्ता बाजार, ठीक है। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बोलते हैं नौबत खाना या नक्कार खाना। एम्पर के आने पर, एम्पर के जाने पर वहां से ड्रम बजते थे, तभी इसका नाम पड़ गया नौबत खाना, नक्कार खाना। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ड्रम हाउस। हर किले के एंट्री पॉइंट पे आपको मिलेगा ड्रम हाउस। हर घर के दरवाजे में मिलेगी डोरबेल। डोरबेल के बिना घर नहीं होता, उस समय इसके बिना किला नहीं होता। अब आपको मैं ब्रिटिश बिल्डिंग दिखाऊंगा। लेफ्ट साइड में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, 1858 में ब्रिटिश आर्मी अंदर आ गई, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। तो ये ब्रिटिश की बनाई बिल्डिंग है, दैट इज कॉल्ड आर्मी बैरक्स। रिसेंटली हमने ये बिल्डिंग डालमिया ग्रुप को दिया ऑन लीज बेसिस पे। उन्होंने इसको रेस्टोरेंट और म्यूजियम बना दिया है, ठीक है। ये जो म्यूजियम है ये प्राइवेट म्यूजियम है, जो आपके पास टिकट है वो गवर्नमेंट म्यूजियम है। और म्यूजियम आप खुद देखेंगे, किला मैं आपको बताऊंगा। आइए, कैन यू सी रेड वन बिल्डिंग बिहाइंड? रेड वन बिल्डिंग, when you look at the building you can see initial pillar, multiple pillars are behind, you can't see all the pillars. Why it is so? All columns are straight, all arches are symmetrical. So I will show you all columns and arches from different angle. You will find all columns are well aligned, all arches symmetrical from every angle. On the way मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बेटर समझ आए। भी बोलते हैं फर्स्ट मॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप मेरे से पूछेंगे उस समय क्या बिकता था, औरतें आज क्या खरीदती हैं? कपड़ा, ज्वेलरी, वेलवेट, सिल्क। उस समय लग्जरी आइटम्स होती थी, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, जेम्स, डायमंड, कारपेट्स। आज बिजनेस चेंज हो गया, मार्केट अभी चल रही है। इस किले को शाहजहां ने बनवाया 1648 बनाने में 10 ईयर्स लगे। अब वास्तव में इसका नाम लाल किला नहीं है। मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा हुआ, उसको देख के सब बोलने लगे बड़ा क्यूट है, ये तो बड़ा सुंदर है, सबने उसको सोनू बोलना शुरू कर दी। सिंस ही इज वेरी क्यूट, ऑन सीइंग हिज क्यूटनेस एवरीबॉडी स्टार्ट सेइंग सोनू सोनू, ही बिकेम सोनू। जब ये किला बना तो शाहजहां ने इसको नाम दिया था किला मुबारक। किला मुबारक। अब लोगों ने इसका लाल रंग देख के बोलना शुरू कर दिया, लाल किला, लाल किला, लाल किला। जैसे ये लाल किला हो गया, ऐसे वो सोनू हो गया। जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, इकाने राजा भोसले, इसको बोलते हैं दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। कॉमन लोग यहाँ आते थे अपने ग्रीवेंसेस लेके और अपने ग्रीवेंसेस एम्पर को बताया करते। अब इधर देखिए, सारे कॉलम देखिए, वाला लाइन है। आप किसी भी एंगल से देख रहे हैं,
सारे कॉलम वेल अलाइन, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल फ्रॉम एवरी एंगल। ये दीवाने आम है, कॉमन लोग यहीं तक आ सकते थे, इससे आगे नहीं जा सकते। इससे आगे उनकी रॉयल लेडीज का पैलेस था। तो अब कहीं से भी देख रहे हैं सारे कॉलम वेल अलाइन, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल। इसको बाजीराव पेशवा ने इसको कैप्चर कर लिया था 1734। बाजीराव पेशवा जी महाराष्ट्र के थे, उन्होंने इस किले को जीत लिया। बाद में उन्होंने मुगल्स को हैंड ओवर कर दिया। बाजीराव पेशवाई ने 41 बैटल्स लड़ी, वो कोई बैटल हारे ही नहीं। पूरी दुनिया में 3 जनरल हुए हैं, बाजीराव पेशवाई इज वन ऑफ देम, ही नेवर लॉस्ट एनी बैटल सिंस बर्थ। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा जहाँ पर एम्परर यूज्ड टू सिट, इकाने राजा भोसले। वो जो सामने देख रहे हैं इसे बोलते हैं सीट ऑफ द किंग, राजा के बैठने की जगह। राजा पीछे से आता था, यहाँ आके बैठ जाता था। आम जनता आती थी अपने ग्रीवेंसेस लेके और राजा के सामने अपने ग्रीवेंसेस बताया करती थी। पहले ग्लासेस नहीं थे, लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर ही चढ़ना शुरू कर दिया। लोग इसको डैमेज कर रहे थे। रिसेंटली भी हमने इसको ग्लासेस में कवर कर दिया ताकि लोग इसको टच ना कर पाए। तो इसको बोलते हैं सीट ऑफ द किंग। इस बिल्डिंग को बोलते हैं दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। कॉमन लोग यहीं आ सकते, इससे आगे नहीं जा सकते। अब आपको मैं यहाँ से दीवाने खास में ले जाऊंगा। अब आपको तो वही किला बनाया है। क्यों? शाहजहां पहले आगरा रहता था, आगरा उसकी कैपिटल हुआ करती थी। जितने मुगल्स थे पहले आगरा ही रहते थे। जब शाहजहां आगरा से दिल्ली, दिल्ली से कश्मीर जाता था, बहुत टाइम लगता था। शाहजहां ने सोचा अगर मैं दिल्ली आ जाऊं तो दिल्ली से हर जगह नज़दीक पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल प्लेस है। शाहजहां अपनी राजधानी लेके आगरा से दिल्ली आ गया। जब दिल्ली आया तो उसको रहने को जगह चाहिए थी, तब भी उसने ये किला मुबारक बनाया। फिर उसने एक नई कैपिटल बनाई, उसने उसको नाम दिया शाहजहानाबाद। जितने मुस्लिम एम्पर होते थे, जब वो सिटी बनाते थे तो साथ में बाद लगाते थे। औरंगजेब औरंगाबाद, तुगलकादीन तुगलकाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, इलाहाबाद, फरीदाबाद, मुरादाबाद। जितने हिंदू राजा होते वो लगाते थे पुर। उदय सिंह उदयपुर, जय सिंह जयपुर, राय सिंह रायपुर, जोत सिंह जोधपुर, कानपुर, नागपुर, दुर्गापुर, शोलापुर। आज किंगडम खत्म हो गया तो सारे शाहजहानाबाद को क्या बोलते हैं? पुरानी दिल्ली। आप इसी को पहले शाहजहानाबाद बोलते थे एट द टाइम ऑफ मुगल पीरियड। जब ये किला बना उस समय जमुना रिवर पीछे ही थी। शाहजहां ने क्या किया, जमुना रिवर के पानी को अंदर यूज़ किया और वो फाउंटेन बनाए। ये फाउंटेन क्यों बनाए? एम्परर चाहता था कि अगर हमारी औरतें बाहर आएँ तो बाहर गर्मी ना लगे, अंदर अंदर के लिए उन्होंने वाटर चैनल बना दिए। ये सारे फाउंटेन बनाए अपनी रॉयल लेडीज़ के लिए, क्योंकि रॉयल लेडीज़ सामने ही रहती थी। एम्परर चाहता था कि हमारी औरतें बाहर आए तो उनको गर्मी ना लगे। अंदर इसके अंदर भी फाउंटेन है। शाहजहां ने क्या किया, अंदर भी फाउंटेन बना दिया, बाहर भी फाउंटेन बना दिया। उस समय जमुना रिवर इसके पीछे ही थी। आज जमुना रिवर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चली गई। और शाहजहां ने क्या किया, जो अंदर वाटर चैनल बनाया, जब वो पानी चलता था तो लोग बोलते ये तो जन्नत है, तो उसका फिर नाम पड़ गया नहर जन्नत। किसने बोला स्वर्ग, इसका नाम पड़ गया नहर स्वर्ग। इसको नहर बहिष्ठ भी कहते हैं। उस समय ये नहर जन्नत एसी और कूलर का काम करती थी। और देखिए सामने देखिए फाउंटेन बना हुआ है, वहीं पर वो फाउंटेन के आसपास उनकी रॉयल लेडीज़ बैठ जाती थी। उनको बड़ा कंफर्टेबल फील होता था। जब उनको गर्मी लगती थी बाहर आके वॉक करती थी। तो ये सारे फाउंटेन बाहर ही लगे थे, यहाँ पर कोई आदमी अलाउ नहीं था। ये देखिए फाउंटेन लगा हुआ है और पीछे से विंड आती थी। क्यों? तब जमुना रिवर पीछे थी, आज जमुना रिवर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चली गई। ये देखिए फाउंटेन लगा हुआ है, सारी रॉयल लेडीज़ उनके आसपास बैठी रहती थी और पीछे से विंड आती थी और बड़ा कंफर्टेबल फील होता था। और बीच में ये नहर बह रही है, ये नहर जन्नत। देखिए ऊपर शीशे लगे हुए हैं, शीशों की वजह से उसका नाम पड़ गया शीश महल। आपके घर में बच्चा सुंदर हो तो बोलते हैं सोनू, लंबा हो तो बोलते हैं लंबू, गोल तो बोलते हैं गोलू। तो शीशे की इसका नाम पड़ गया शीश महल। और ये वाटर चैनल का नाम पड़ गया नहर जन्नत।
मेड सर्वेंट्स होती थी, उनके लिए नीचे बनाया हुआ है ताकि उनको कभी भी बुला सकते थे। बीच में ये वाटर चैनल है, कहीं भी जाएंगे आपको वाटर चैनल हर जगह मिलेगा। जब ये किला बन रहा था उस समय ताजमहल भी बन रहा था, दोनों बिल्डिंग साथ साथ बन रही थी। जब भी शाहजहाँ को आगरा जाना होता था, ये एक रास्ता बनाया रिवर के, उस रास्ते से बोट लेके आगरा निकल जाते। जो सामने देख रहे हैं ये रंग है, जैसे इसका नाम पड़ गया रंग महल। वो एम्पर का लिविंग रूम है, ये उनके औरतों के रूम है, और बीच में ये स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज। शाहजहाँ ने जब भी कमरे दिए अपनी लेडीज़ को रिवर साइड दिए ताकि रिवर देख के टाइम पास हो, क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम फेसबुक मोबाइल नहीं होते थे, तो लेडीज़ रिवर देख के टाइम पास करती थी। और रिवर साइड रूम बिकम्स कूलर देन अदर साइड। हाँ जी, शाहजहाँ का लिविंग रूम, इधर उनका प्रेयर रूम है, ये उनकी औरतों के कमरे हैं। शाहजहाँ ने जब भी कमरे बनाए अपनी औरतों के कमरे रिवर साइड बनाए। वो शाहजहाँ वहाँ पर खड़े होकर लोगों के सामने आते थे, तो लोग उनको देखना चाहते थे, वहाँ पे खड़े होकर लोग उनको देखा करते थे। जब ब्रिटिश आर्मी इस किले के नज़दीक आ गई, उस समय का एम्पर था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जो जफर था वो लास्ट और 20th मुगल एम्पर था। जब ब्रिटिश आर्मी इस किले के नज़दीक आ गई तो बहादुर शाह जफर हैड टू एस्केप फ्रॉम दिस वे बाय टेकिंग बोट। लेटर ऑन ही वेंट टू निजामुद्दीन औलिया। So this is the way to go to river. So same river connects to Taj Mahal also. Same river connects to this fort also. That river is known as Jamuna river. ये दीवाने खास है, यहीं पर शाहजहाँ बैठते थे मयूर सिंहासन पे, जिसको तख्ते ताउस भी बोलते हैं। वो प्योर गोल्ड का था, जिसको बनाने में मोर देन 7 years लगे थे। उसके जो क्राफ्टमैन आए थे पर्शिया से आए थे, वो ताजमहल से महंगा बना था, इतना ऊंचा बना था। शाहजहाँ उस पर चढ़ने के लिए सोने की लैडर बनवाई थी, और उसके अंदर तरह तरह डायमंड्स लगे थे। कोई ना डायमंड भी उसी में लगा था, मगर नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गया 1739। आज भी कुछ गोल्ड लगा हुआ है, जो ब्रिटिश आर्मी गई तो यहाँ से गोल्ड उतार के ले गई। ब्रिटिश आर्मी इस किले में रही 89 years। जब देश आज़ाद हो गया तो ब्रिटिश चली गई। अभी भी गोल्ड लगा, गोल्ड छीलो, इकाने गोल्ड छीलो, इकाने गोल्ड छीलो। इसको बोलते हैं सेमी प्रेशियस स्टोन्स। गोल्ड है। सोना था अभी नहीं, अब नहीं, वो है ना, अभी भी है ना वो गोल्ड। देखिए अभी भी गोल्ड है। देखिए इसको देखिए, इसको बोलते हैं मीनाकारी हैं। हमने कार्विंग की स्टोन लगाई, ऑरेंज है कॉर्नेलियन है, ग्रीन मलाकाई है, रेडिश रूबी है, ब्लू लेपिस लेजली है। इस काम को बोलते हैं मीनाकारी। यही काम ताजमहल में हुआ है, यही काम यहाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का बनाने में सेम मार्केट है। उनके नाम है लाहौरी, तभी उस गेट को नाम दिया लाहौरी गेट। देखिए सामने जो टेबल पड़ी है ना, इसी लोकेशन पे पीकॉक थ्रोन था, जिसको नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गया 1739 में। इसलिए हमने टेबल रखी ताकि उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करा सके। इसको बोलते हैं हमाम। हमाम मीन्स रॉयल बाथ। आपने सुना होगा हमाम साबुन, उन्होंने अपने ब्रांड का नाम यहीं से लिया था। क्यों लिया था? जब लोग हमाम साबुन से नहाएंगे, दे विल फील प्राउड, वी आर लाइक रॉयल पीपल, लाइक रिच पीपल। इन मॉडर्न लैंग्वेज यू कैन से स्पा। यहाँ पर रहते भी थे एम्परर, बच्चे भी रहते थे, उनकी वाइफ भी रहती थी। और बीच में नहर जन्नत, नहर स्ट्रीम। आपको हर जगह नहर जन्नत, नहर स्ट्रीम मिलेगी किले के अंदर। इसको बोलते हैं मोती मस्जिद। ये औरंगजेब ने बनाई अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जब शाहजहाँ ने डिसाइड किया कि मेरा सबसे बड़ा बेटा किंग बनेगा, औरंगजेब ने अपने फादर को डिथ्रोन करके खुद गद्दी पे बैठ गया और अपने तीनों भाइयों का मर्डर कर दिया। औरंगजेब ने 51 years रूल किया। 51 में 27 years वो महाराष्ट्र में रहा। तब महाराष्ट्र को ढक्कन बोलते थे। ये होती है औरंगजेब की पर्सनल मोहर। इसको बोलते हैं मोती मस्जिद, मुक्ता मस्जिद भी बोलते हैं इसे, जो उसका दरवाज़ा कॉपर प्लेटेड है। और ये अपने तीनों भाइयों का मर्डर करता कि वो किंग ना बन सके। ये उसका दरवाज़ा वो कॉपर प्लेटेड है। बता रहा हूँ, जो सामने बिल्डिंग है वहाँ पर बैठा करता है। बीच में वाटर चैनल है, जिसे बोलते हैं नहर जन्नत। जो लास्ट वाली वाइट बिल्डिंग है, जब जमुना नज़दीक थी वहाँ से पानी उठा के उस छत पे डालते थे। पानी हर जगह सर्कुलेट होता था। इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
ये भी नहर, तो उस समय नहर बहा करती थी, आज इसको मॉडिफाई कर दिया तो लगता नहीं कि नहर है। ये सारा पानी ऐसे चलता रहता था और पैलेस को ठंडा करता है। इसके लिए इधर आइए, 2 महीने होते हैं बारिश के, जिसको हिंदू बोलते हैं सावन भाद्रो। सावन मास में यहाँ बैठती रॉयल फैमिली बारिश का एंजॉय करने के लिए। बारिश इधर से ना है, देखिए दीवार बनी है, देखिए। अब आ गया भाद्रो मास, बारिश आएगी इधर से तो भीग जाएंगे, भाद्रो में उधर मूव कर जाते हैं। उधर दीवार अपोजिट साइड बनाई हुई है, इधर दीवार इस साइड बनी, नॉर्थ साउथ में बनी है, उधर दीवार नॉर्थ में बनी। तो इसका नाम है सावन, इसका नाम है भाद्रो। सावन में यहाँ बैठते हैं, भाद्रो में उधर चले जाते हैं। अब इधर आइए, तभी इसका नाम पड़ गया लाइफ सेविंग गार्डन। जो रेड बिल्डिंग है, जो आखिरी और 20वां किंग था बहादुर शाह जफर था, उसी पैलेस में रहता था। ब्रिटिश ने उसको पकड़ लिया, क्यों पकड़ा? क्योंकि वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार को लीड कर रहा था। उसको पकड़ लिया, पकड़ के ले गए रंगून, वहाँ उसकी डेथ हो गई पैरालिसिस से 1862 7 नवंबर। उसके 3 बेटे, तीनों बेटे को हैंग कर दिया ताकि मुगल डायनेस्टी खत्म हो जाए। उसके बाद रेड और वाइट बिल्डिंग बनी, इसको बोलते हैं छावनी बैरक्स, उसको कॉलोनियल बिल्डिंग भी बोलते हैं। ब्रिटिश आर्मी यहीं रही अराउंड 89 ईयर्स। जब देश आज़ाद हो गया, ब्रिटिश आर्मी चली गई। आइए, फिर इंडियन आर्मी रहने लगी इन्हीं बिल्डिंग में। 2002 में हमने यूनेस्को से रिक्वेस्ट की कि आप पूरे किले को वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट का स्टेटस दे दो। यूनेस्को ने बोला पहले इंडियन आर्मी शुड वकेट, फर्स्ट इंडियन आर्मी शुड वकेट। फिर इंडियन आर्मी को भी यहाँ से जाना पड़ा 2002 में। उसके बाद इनका कोई बिल्डिंग का कोई प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा था, ये ऐसी पड़ी थी। अब मोदी जी आ गए 14 में, 15 में, 16 में। उन्होंने पूछा इस बिल्डिंग का, उन्होंने बोला ये बिल्डिंग खाली हुई है। मोदी ने बोला दे शुड बी रीयूज्ड, है ना। रिसेंटली इनकी रेस्टोरेशन की, देखिए नामुन। यहाँ पर बैठा करते थे मुगल फैमिली, ये रेनी वाटर ऊपर स्टोर करते थे और वाटर वहाँ से ऐसे फ्लो करता था। और यहाँ पे लैंप रखे जाते थे और रिफ्लेक्शन आती थी, और लैंप की रिफ्लेक्शन थी वाटर में, और बड़ा अच्छा लगता था। और पीछे देखिए, इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज, कैनाल ऑफ पैराडाइज। फिर ये अभी ये रिसेंटली इन बिल्डिंग को दोबारा से तैयार किया गया। इनको तैयार करके इनको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। इनको म्यूज़ियम में कन्वर्ट क्यों किया? जो पहले म्यूज़ियम थे छोटे थे, वो सेंट्रल एसी नहीं थी और वो बिखरे हुए थे, दे वर स्कैटर्ड अराउंड। रिसेंटली क्या किया हमने, बिल्डिंग को तैयार किया, इनको तैयार करके हमने इनको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। इसमें तो मुगल्स के कपड़े हथियार हैं, इसमें जलियांवाला बाग के बारे में हिस्ट्री है। जो थर्ड बिल्डिंग है उसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में हिस्ट्री है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पर हिस्ट्री का जो INA सोल्जर्स थे, शाहनवाज खान, गुरबचन सिंह ढिल्लन, सहगल, उनको इन्हीं बिल्डिंग में इम्प्रेशन किया गया था और उन पर ट्रायल भी यहीं हुई थी। उनको डिफेंड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, काटजू, देसाई, आसफ अली, उन लोगों को डिफेंड किया था इन लोगों ने। ये जो किला है, इस किले का एरिया है 256 एकड़। आगरा में भी एक किला है, यहाँ पर शाहजहाँ, उसका एरिया 94 एकड़। वो डी शेप में है, ये ऑक्टेंगल शेप में। तो अगर आपको कैफेटेरिया ना, तो लास्ट में कैफेटेरिया है, सामने वॉशरूम है, लेफ्ट से लेडीज, राइट से जेंट्स लेनी। तो यही मैंने आपको बताना था। अगर मेरे से कोई गलती तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू वेरी मच। গাইডের মাধ্যমে আশা করি লালকেল্লা সম্বন্ধে একটু হলেও আপনাদের জানাতে পারলাম। তো আমি এখন লালকেল্লার বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। আর আজকের ব্লগটা এই পর্যন্ত। যদি আমার চ্যানেলটা এতটুকু আপনাদের ভালো লাগে, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে টিপে দিন, যাতে আমি পরবর্তীকালে যে ভিডিওগুলো দেব তার নোটিফিকেশান আমরা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যান। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই আশা রেখেই আমি বিদায় নিচ্ছি। জয় হিন্দ। দারুণ টেস্ট, ফাটাফাটি টেস্ট। আজকে সোমবার, তাহলেও কিন্তু ভিড়, তবে স্কুল ছাত্রদেরও ভিড়ও আছে।